Hello to everyone. Myself Saurabh Srivastav, and I'm going to give you some important tips, or you can say that I'm going to tell you about some basic topics, or I'm going to cover something basic about Python. So let us start the Python. So today what we are going to cover is that introduction part, and Python plus, that is advantages, and Python minus, that is disadvantages. And the last topic what we are going to see is working in Python, that is we'll see some few practicals how this command is, how the commands in Python that really works. So let us start with an introduction. Python programming was developed by Guido van Rossum in February 1991. Python is based on or influenced with two programming languages, that is ABC language and Modula 3. Python is an easy to learn yet powerful object-oriented programming language. It is a very high-level programming language, yet as powerful as many other middle-level, not so high-level languages like C, C++, Java, etc. So इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या देखा यहाँ पे कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप किया है ग्यूडो वैन रॉसम ने. आपने उनका फोटो यहाँ पे देखा है, इज ग्यूडो वैन रॉसम. So it is developed by him in February 1991. So Python प्रोग्रामिंग जो है आपका टू लैंग्वेजेस पे डिपेंड है. तो पहला लैंग्वेज है आपका ABC लैंग्वेज एंड द सेकेंड वन इज मॉड्यूला 3 लैंग्वेज. पाइथन एक आपका बहुत ही इजी लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसके बावजूद भी इट इज़ ए वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट नॉट एज पावरफुल एज C, C++, जावा एक्सेट्रा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथन के पास जो इसके पास लाइब्रेरी कंटेंट्स है, लाइब्रेरी कंटेंट्स में जो इसके पास कोडिंग के जो मेथड्स या फिर कोडिंग के जो वर्ड्स हैं वो उतने नहीं हैं जितने C, C++ और जावा के पास हैं. और इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट पाइथन हैज़ ए वेरी लेस लाइब्रेरी कंटेंट देन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So let us move forward. So let us see Python pluses. That means what are the advantages of Python? So advantages of Python is easy to use, expressive language, interpreted language. So let us see the first one, easy to use. Easy to use means Python is very compact and easy to use object-oriented programming language with very simple syntax rule. It is very high level language and thus very powerful. And thus very programmer friendly. So easy to use means it is an very compact, यानी ये एक compact और easy object oriented programming है. Object oriented language का मतलब होता है कि normally basic English words का इसमें use होता है. For example, suppose if you want to print anything on the Python programming, so हम क्या use करेंगे? Print command का use करेंगे, PRINT. आप सबको पता है कि print का मतलब क्या होता है. So we are going to use very basic English languages in Python. That's why it is easy to use and it is very programmer friendly. Next one is expressive language. Python expressive means it is more capable to expressing the code's purpose than many other languages. Main reason is that it uses few lines code. Expressive language का मतलब क्या है कि ये कम लाइन में यानी कम कोडिंग में आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल देगा. दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ लेस कोड्स यू आर गोइंग टू जनरेट ए परफेक्ट प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ पाइथन. नेक्स्ट वन इज इंटरप्रीटेड लैंग्वेज. इंटरप्रीटेड लैंग्वेज का मतलब क्या हम यहाँ देखते हैं. दिस मीन्स दैट द पाइथन इलिस्ट्रेट्स, इंटरप्रीट्स एंड एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन एट ए टाइम. इट मीन्स दैट पाइथन इज ईजी टू डिबग लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है, पाइथन आपको लाइन बाय लाइन डिबग करेगा. जैसे आपने 4 लाइन लिखा, फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्रामिंग 4 लाइन का है, तो पहले पाइथन प्रोग्रामिंग जब आप रन करेंगे उसको प्रोग्रामिंग लिखने के बाद, तो वो रन के टाइम पे पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा. अगर उसमें कोई एरर है तो उसको वहीं शो करेगा, फिर आगे बढ़ेगा. दूसरे लाइन उसको चेक करेगा, दूसरे लाइन में कोई एरर है तो आपको शो करेगा. यू हैव टू डिबग दैट एरर एंड देन ओनली दैट Python programming is going to move forward. That means so in this way interpreted language works in Python programming
language. So next point is its completeness. This means that when you install Python, you will get everything you need to do real work. You do not need to download and install additional libraries. इट कम्प्लीटनेस का मतलब है कि पाइथन तो एक फ्री लैंग्वेज है, आपको नेट पे गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा. तो पाइथन एक फ्री लैंग्वेज है. फ्री लैंग्वेज होने के साथ साथ आपको उसके साथ सब कुछ मिलता है, आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट्स व्हाट दैट टॉपिक मीन्स, इट कम्प्लीटनेस. क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मीन्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब होता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग जो है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो मैकिन्टोश हो, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे वो यूनिक्स हो, किसी पे भी वो वर्क कर सकता है. इट इज़ वेरी पोर्टेबल लैंग्वेज. और पोर्टेबल का मतलब ही होता है विच यू कैन कैरी ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इन द सेम वे पाइथन इज़ अ वेरी पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन ईजिली बी इंस्टॉल इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन इज फ्री एंड ओपन सोर्स. अभी हमने बताया फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब कि पाइथन प्रोग्रामिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा नहीं देना है, बस यू हैव टू ओपन योर गूगल, टाइप डाउनलोड पाइथन, वहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे. सो यू हैव टू सेलेक्ट ए जेन्यून site. From that you have to download your Python programming language. The next one is variety of uses. These days Python are used in many diverse fields: application scripting, web applications, gaming development, etc. Python के कई सारे यूजर्स हैं. हम स्क्रिप्टिंग में यूज़ करते हैं, गेम डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं. सो ये था आपके इसके वेराइटी, यानी पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. सो नाउ वी विल सी पाइथन माइनसेस. अब हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे, बिकॉज हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत. सो व्हाट वी हैव सीन इज द एडवांटेजेस. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज. मतलब ये पाइथन आपका फ्री लैंग्वेज है और बहुत ही प्रोग्रामर फ्रेंडली है, लेकिन उतना फास्ट नहीं है जितना आपका सी प्लस प्लस, जावा या पर्ल है. Let us read this. The reason behind this is Python is an interpreter language, not a fully compiled one. ये डिफरेंस है इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर में. इंटरप्रीटर का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन चेक करना प्रोग्राम को और उसी वक्त उसका एरर दिखाना. और कंपाइल का मतलब होता है कि पूरा प्रोग्राम, सपोज 10 लाइन का प्रोग्राम है तो पूरा प्रोग्राम एक साथ रन होगा और जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं वो पूरा कंपाइल करने के बाद आपको लास्ट में आपका एरर्स दिखाएगा. So this is the difference between इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर. इसलिए ये थोड़ा स्लो लैंग्वेज है, फास्ट लैंग्वेज नहीं, क्योंकि हर एक लाइन बाय लाइन जाता है. और कंपाइलर में क्या होता है, पूरा एक साथ चेक करता है, लास्ट में एरर देता है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. लेसर लाइब्रेरीज देन सी, जावा, पर्ल. अभी हमने पिछले टॉपिक पे देखा कि जावा के पास लाइब्रेरी कम होते हैं कंपेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेट अस मूव नेक्स्ट वन. नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग. मतलब मिसमैच हो जाता है. इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैचिंग मिसमैच. सपोज कोई मिसमैच हो रहा है तो ये इतना परफेक्ट नहीं है कि पाइथन लैंग्वेज उसे कैच कर सके. नेक्स्ट, नॉट इजीली कन्वर्टेबल. इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम इनटू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आप कोई पाइथन पे कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इनटू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी इसको आप बहुत मुश्किल से किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएंगे. So now we will see difference between interpreter versus compiler. Let us read out this topic. Interpreter. This language processor converts a HLL, that means high level language, program into machine language by converting and executing it line by line. If there is any error in any line, then it will report at the same time and program execution cannot resume until the error is rectified. अभी हमने बताया, पहले पूरा पढ़ लेते हैं इसे. नेक्स्ट वन, कंपाइलर. इट कन्वर्ट्स द HLL, दैट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, इनटू मशीन लैंग्वेज, बट द कन्वर्जन मैनर इज डिफरेंट. इट कन्वर्ट्स द एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू वन गो and reports all the error of the program along with the line number. So let us understand difference between interpreter and compiler now. According to the definition, it is really clear that interpreter क्या करता है, सेम वही जो हमने पहले बताया था, फिर से आई एम रिपीटिंग द सेम वन. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय राइटिंग द डेफिनेशंस ऑफ इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर. इंटरप्रीटर हर एक प्रोग्राम को, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो खाली पाइथन ही हो. इंटरप्रीटर का डेफिनेशन सेम रहेगा फॉर ईच एंड
every programming languages. For example, C, C++, for anything, for Java also. So इंटरप्रेटर क्या करता है, हर एक प्रोग्राम को वो लाइन बाय लाइन चेक करता है. अगर 10 लाइन का प्रोग्राम है, 5वें लाइन में एरर आ गया तो प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा और आपको डिस्प्ले करेगा कि दैट देयर इज एन एरर ऑन द 5th लाइन ऑफ द प्रोग्राम. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू debug that particular error, then only the program is going to run further. नहीं तो वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप उस पर्टिकुलर एरर को सही नहीं करते. और कंपाइलर में क्या है, पूरा उल्टा है. कंपाइलर में लाइन बाय लाइन चेक नहीं होता है. सपोज 10 लाइन का प्रोग्राम है तो पूरा 10 का 10 लाइन एक साथ रन होगा, एक साथ पूरा एग्जीक्यूट होगा. अगर सही है तो आउटपुट आ जाएगा, अगर सही नहीं है, सपोज 7th लाइन पे कोई एरर है और 5th लाइन पे और 6th लाइन पे, यानी 5, 6 और 7 ये तीनों लाइन पे एरर है, तो लाइन बाय लाइन रुकेगा नहीं. आपको पूरा प्रोग्राम रन करने के बाद लास्ट में आपको बता देगा कि लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6 एंड लाइन नंबर 7 हैज सम एरर. तब उसको आप डीबग कर सकते हैं. ये डिफरेंस था इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में. सो नाउ वील मूव टू द सम बेसिक प्रैक्टिकल पार्ट्स इन पाइथन. सो लेट मी open Python. So after typing Python in the search bar, always we have to open IDLE. Okay, so this is our IDLE. So let us start some with basic programming. Suppose if you want to add two numbers, so the basic is that 2 plus 3, so result will be 5. As you can see there, the result is 5. So these are the basic programming, or you can say in Python, let us try each and every arithmetic operators. First we have seen the addition, that is 2 plus 5. Now we are going to see the subtraction, 10 minus 5 is 5, or multiplication, 23 into 4, the result is there. Suppose we are going for divide, 25 divided by 5, we are getting the result. So in this way we have seen all the different arithmetic operators. Now what we have to see here, so here we have seen, यहाँ पे हमने देखा कि हमने किस तरह अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. अब हम आगे देखते हैं. सो अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ पावर फंक्शन इन पाइथन. हम पावर फंक्शन पाइथन में कैसे यूज़ करेंगे. पावर फंक्शन मीन सपोज 4 to the power 2 हमने लिखा, यानी 4 विल बी मल्टीप्लाइड 2 times, दैट इज 4 into 4, दैट इज आंसर विल बी 16. तो इसी तरह हम किसी भी नंबर का पावर फाइंड करने के लिए तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो वो फंक्शन है a into b. दैट मीन्स a कैन बी एनी नंबर, यू कैन असाइन एनी नंबर. सो इन बिटवीन a एंड b देयर विल बी 2 मल्टीप्लिकेशन साइन. a और b के बीच में हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन रहेंगे. फॉर लेट अस सी सम एग्जांपल्स. सपोज 25 into 4, you got the answer. That means 25 is multiplied by 4 times. That 25 into 25 into 25 into 25. So in this way you can find power of any number. Only you have to use double multiplication sign in between the a and b numbers. यानी a और b कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, और इन दोनों के बीच में हमेशा 2 मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज होगा. दैट इज a into b. That will really help you to find the power of any number. So let us move forward. As you can see here in the above example we have done 10 divided by 2. हमने यहाँ पे देखा 10 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5.0. अगर हमें खाली 5 चाहिए, ये 0.0 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यानी टू रिमूव एनी डिसिमल वैल्यू आफ्टर द नंबर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज डबल बैक स्लैश. हम 2 बार बैक स्लैश का यूज करेंगे. लेट अस रिपीट विद द सेम एग्जांपल, दैट इज 10 डिवाइड बाय, यानी डबल 1 बैक स्लैश एंड अनदर बैक स्लैश. वी हैव यूज, हमने यहाँ पे 2 का इस्तेमाल किया और फिर 2, और हमने एंटर का बटन दबाया. सी यहाँ पे क्या आया, ओनली 5, लेकिन इससे पहले क्या आया था 5.0. सो दीज आर द सम बेसिक रूल्स ऑफ पाइथन what you are going to learn. So let us move forward with the next one. सबने वो पढ़ा है बोडमास का रूल कैसे अप्लाई किया जाता है मैथ्स में. आई थिंक ईच एंड एवरी वन विल बी फेमिलियर विद दैट. So let us start doing some BODMAS examples. So BODMAS क्या है? First it will be solved. So first the bracket one will be solved. Division, multiplication, addition and subtraction. In this way this BODMAS rule works. अब हम देखते हैं कि कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है. सपोज हम लेते हैं 8 + 9 -
10। अब बोर्ड मास के हिसाब से पहले आता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नहीं है। दूसरा आता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। तीसरा आता है डिवीजन, तो इसमें डिवीजन भी नहीं है। नेक्स्ट आता है एडिशन, फिर आता है सब्ट्रैक्शन। तो यानी 8 + 9 पहले ऐड होगा, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो 10 से सब्ट्रैक्ट होगा। एज यू कैन सी द आंसर इज 7। ये तो हमने रूल के हिसाब से किया। अब थोड़ा रूल चेंज करते हैं। सपोज फर्स्ट हम लाते हैं डिवीजन लाते हैं, तो हम लिखते हैं 10 / 2। अब मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 फिर -4, तो आंसर इज 21.0। तो बोर्ड मास, तो जो भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखेंगे, वेदर वी आर यूजिंग एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन बिटवीन द नंबर्स, ऑलवेज it will solve that particular problem, or it is always solve that particular question only in the board mass manner, यानी वो हमेशा बोर्ड मास का ही रूल अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे गलती क्या होगा, ये तो हो गया सही। अब इसमें गलत क्या होगा, सपोज हमने लिखा 8 + 9 माइनस, हमने 8 + 9 तो लिख दिया, लेकिन उसके माइनस के आगे कोई नंबर डिफाइन नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। यू कैन सी सिंटैक्स एरर, इट इज टेलिंग यू दैट इज इनवैलिड सिंटैक्स। यहाँ पे 9, इफ यू आर मेंशनिंग माइनस, दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन एनी नंबर इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ पे उसके आगे आपको कोई ना कोई दूसरा नंबर मेंशन करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे 8 + 9 -5। नाउ सी यू गॉट द आंसर। इन दिस वे इट इज गोइंग टू वर्क। Let us move forward. Let us take some bracket example. So let us open one bracket and we are writing 8 + 5. Let's close the bracket and multiply by 8. You got the answer. That means 8 + 5 पहले ऐड होगा, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। So in this way it's going to work. So let us move forward. So let us see the new topic, that is how we are going to use string. अब हम स्ट्रिंग वैल्यू कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में। तो जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करते हैं तो हम हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर लेट अस सी सम एग्जांपल। सो आई एम यूजिंग सिंगल कोट। इन दैट सिंगल कोट आई एम गोइंग टू राइट समथिंग। सपोज आई एम राइटिंग हाई, हाउ आर यू। सो आई एम क्लोजिंग विथ सिंगल कोट एंड आई एम प्रेसिंग एंटर बटन। तो एंटर दबाते ही हमें दिख रहा है कि जो भी हमने सिंगल कोट में लिखा वही हमारे पास वापस से सेम प्रिंट हो गया, हाय हाउ आर यू। सो ये तो सिंगल कोट। सो इफ़ यू आर यूजिंग प्रिंट ऑप्शन, अब यहाँ पे हम छोटा सा एक प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, एक कमांड का इस्तेमाल करते हैं, PRINT, प्रिंट, ओपन द ब्रैकेट एंड इन सिंगल कोट वी आर राइटिंग हाय आई एम फाइन, क्लोज द सिंगल कोट एंड क्लोज द ब्रैकेट। आफ्टर डूइंग दिस जस्ट प्रेस द एंटर की। सी, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम प्रिंट कमांड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग प्रिंट कमांड, तो सिंगल कोट जो हम लिख रहे हैं एज इट इज सेम कॉपी हो जाएगा विद द सिंगल कोट। लेकिन वेन एवर वी आर यूजिंग प्रिंट कमांड तो सिंगल कोट यहाँ से हट जाएगा। ओनली द मैटर विच यू आर प्रिंटिंग इन द ब्रैकेट दैट विल बी डिफाइंड एज योर आउटपुट, दैट इज हाई आई एम फाइन, without any single quote or double quote. So this was the main difference between using print command or without using print command. Suppose if you want to type your name 10 times or 40 times or 50 times, so how you're going to write that? So it's very simple. What we have to do, we have to mention the number how many times that you want to write your name. So let us see some example. Suppose if you want to, हमें टाइप करना है 10 टाइम्स राम का नाम, तो 10 हम लिखेंगे पहले, यानी जितने बार हमें टाइप करना है उतना नंबर है पहले डिफाइन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और फिर लिखेंगे RAM। तो यहाँ पे आपने देखा गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या गलत हुआ है, लेट अस फाइंड आउट। हमने 10 टाइम्स तो लिखा ही, 10 इंटू किया यहाँ पे कि हमें कितने बार चाहिए, 10 बार चाहिए, मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने लिखा राम। यू कैन राइट एनी नेम, हमने लिखा यहाँ पे राम। तो यहाँ पे गलती क्या हो गया, हम क्या डिफाइन, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। तो ऑलवेज वी हैव टू कीप इन माइंड, हमेशा हमको ये ध्यान रखना है जब भी हम स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन करते हैं तो हमेशा वो वैल्यू वेदर इट इज सिंगल और डबल कोट। सो लेट अस टाइप अगेन। तो 10 इंटू, you have to open one single bracket, inverted comma, I am writing RAM Ram and I am closing with single inverted comma. Now you can see, now you have got the output 10 times यहाँ पे राम लिख के आ गया। So in this way you can put any numbers 50 into
again we have to, so you have to use single quote or double quote is very compulsory while you are defining any string. Now I am using double quote. In that I am writing Ram. Now see, 50 times it has been printed. I hope this was the first basic chapter of Python. I hope you have understood this particular